that lecture we have started with classification of amines like primary, secondary and tertiary, and the basicity of amines. So I recall it and ask one question: what is the core concept for the basicity of amine? How can we define the basicity of amine? Is anyone? Availability of long pairs. Lakshmi sir? Yes. Basicity of amines? Amines behave as Lewis base. Lewis base. Their basic character will depend upon their tendency to donate their lone pair of sets. Okay. So on the same concept, there is one more thing. I have used some things. So it is you can also learn how to use this board. This is the PPT, and after this particular point, I have insert a blank PPT. How to enter? You just click at here and write new slides and whatever type you can. So a blank CD I have added here. On this, I can easily write by this pen. So here it is. Also to cite this one. So here the topic is classification of primary basicity of amines. So this is the nitrogen and lone pair is here, and donation of lone pair is decided the basicity of amines. So one question is there. There are two compounds. This is the structure of pyridine. This is the structure of, and what is this? This is the pyrrole. So pyridine and pyrrole here, and in both cases nitrogen has a lone pair. Okay. So I put the lone pair in this like this, in this also same. So can you tell me which one is a more basic and why? Anyone? As concept is the donation of a lone pair. So what is the reason, and which one is first? Which one is a more basic? First one is more basic. First one is the more basic. पीछे से मनीष सर, please put down the mobile. What is the answer? What is the cause? Which one is more basic, pyridine and the pyrrole? First thing, first you tell me both are aromatic or not? Both are aromatic? Yes. Sure? So which one is a more basic? First one is a more basic. So what is the reason? Manu sir, what is the reason? Lone pairs are not involved in this. A lone pair is not involved. In the aromaticity for this compound and lone pair How many are electrons, included. like Robinson ने पढ़ाया था इसको. Huckel's rule, there are two electrons and two electrons. So 6 electrons are there. So you follow the Huckel's rule. So this one is aromatic compound. This lone pair is no need to count in this 6 electrons. But here 2 electron here and 2 electron here. So that is 4 electron. This is 4 and pi system. We needed 2 more electron for the aromaticity. So this electron, which one is here, actually present here and involved in the cyclization या फिर delocalization of pi electron cloud. So this is not available for the donation. So that's why it is less basic. And also we have discussed later on primary, secondary and tertiary amine and their basicity. You are all well aware about that? Any question? So no problem. इसको फिर यहाँ से हमें हटा देना, ये हट गया, बोर्ड भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ पे बेसिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन देखें, एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान सा है. यहाँ पे टर्शियरी अमीन है, दिस वन इज द टर्शियरी अमीन, लाइक दिस, and there is two concepts. You have to tell me what is the IUPAC name of this compound. Antika ma'am, is this primary or secondary amine? This is primary. Tertiary. This hydrogen or carbon? Line is a line diagram. You are well aware about. That is tertiary. Tertiary amines. Okay. So this is a tertiary amine. What is the name of this compound? This will be. Let me try it. So इस टाइप के जो भी कंपाउंड होते हैं हम इसको डिवाइड कर लेते हैं नाइट्रोजन को, और एक साइड में मेन ग्रुप और एक साइड में साइड चेन. जहां पे ज्यादा कार्बन होते हैं उसे हम मेन ग्रुप मान लें. N dimethyl butane to amine. ठीक है. तो एक और तरीका है, जैसे हम इसे मान लें प्राइमरी अमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही कंसीडर कर लें, सारे हाइड्रोजन ही कंसीडर कर लें, तो नाम देना हमारा आसान हो जाएगा, लाइक दिस 1 and 2, तो क्या हो जाएगा 3 and 4, दैट इज ब्यूटेन अमीन 2.
तो अब इस ब्यूटेनामीन 2 में हमें इन दोनों को सिर्फ ऐड कर देना, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल बेटेन टू माई। तो कहने का मतलब हम इसे छोड़ देते हैं इस पोर्शन को, तो ये इसका नाम लिखना और आसान हो जाता है। जो मेन चेन है उसको प्राइमरी अमीन मानते हैं, प्राइमरी अमीन का नाम लिखते हैं और फिर साइड चेन को इस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेटर ऑन, दैट इज द important compound which is the parent compound for synthesis of many compounds from the amine chapter. So that one is I know you don't know about this name. So that is the diazonium salt. Diazonium salt is a very important compound. Why we study? We also discuss about this. Why we take this diazonium salt as a parent compound for synthesis of many compounds. Anyone? What is the reason? What could be the possible reason? That is the phenyl cation, और अगर हम स्मॉलर वन में ले लें that is the vinyl cation. आज क्वेश्चन भी था एक हमारे में टेस्ट में जिसमें हमने एल्कीन और एल्काइंस की रिएक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन था। हो सकता है आप सबने किया भी हो कि कौन सी ज्यादा एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिव है। तो जब भी हम एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं तो मोड्स ऑफ रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकेटाइन्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है दैट इज द विनाइल केटाइन, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं एरोमेटिकली तो बन गया फिनाइल केटाइन। तो फिनाइल केटाइन एंड विनाइल केटाइन आर लेस स्टेबल, so it cannot easily form. And on the directly if you benzene ring you want to put a nucleophiles, so that is one is not an easy reaction. So we drive a compound that is benzene diazonium chloride. Here that is a nitrogen with a triple bond here and a positive charge here, and it forms this type of compound along with this ring. So this one is easily break because nitrogen is a very strong molecule, and it has a 78% I think in the presence of atmosphere because it has a triple bond is present. So that's why we use particularly this compound to synthesize many other compounds. But it is not a easy compound. It is very ये बहुत जिद्दी टाइप का कंपाउंड है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत सीवियर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, तभी ये स्टेबल होगा, अदरवाइज इट ब्रेक डाउन इनटू द अदर कंपाउंड्स। ओके, so that is the next. Any question regarding this? कम टेम्परेचर पर जो ऐसा डायमोनियम बनता है और जो है ना और उसका कुछ मैं हाँ बनाते हैं, लेकिन मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, बेंजीन डायज़ोनियम को बनाने का मैकेनिज्म बताऊंगा। ये सर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, लो टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर का रोल उसमें नहीं बताऊंगा, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा किस तरीके से बेंजीन डायज़ोनियम बनता है। आपसे एक आध क्वेश्चन भी है मेरा, पूछूंगा एक चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट इज सम बेसिक प्रॉपर्टीज, इसको हम आगे ले लेते हैं सीधे प्रिपरेशन। तो यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, हम एनिलीन को ले रहे हैं और एनिलीन में हम एक मिक्सचर को मिक्स करते हैं, सोडियम नाइट्राइड और मीडियम ले रहे हैं एसिडिक, एंड टेम्परेचर जैसे हमने बताया 0 से 5 के बीच में मेंटेन करना है, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से बन रहा है। That is the aniline which I used a little bit later. First the reagent is sodium nitrite plus HCl. Okay, when you combine these two compounds, an electrophile is generated which attack on this particular compound. Can you tell me which the name of that electrophile? Can you? नाइट्रोसोडियम है। हाँ, कोई और बताए इधर से, राजेंद्र सर, वेजू सर, व्हाट इज हाँ नाइट्रस एसिड इलेक्ट्रोफाइल आई एम टॉकिंग NO2 प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ऐसा। और मैडम अनीशा मैम
दीपशिका मैम हाँ वो इधर आप प्लीज आप सारे सभी बच्चे प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड ओके। यहाँ पे नाइट्रस एसिड बिल्कुल सही बताया इन्होंने, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो एक एसिड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द नाइट्रस एसिड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी बेसिसिटी 1 है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। एंड सिंस वी हैव टेकिंग द एसिड, सो आफ्टर द प्रोटोनेशन दिस कंपाउंड इज प्रोटोनेटेड लाइक दिस, and if this bond is break, then this compound is formed. Nitrosonium. What is the name of this one? Nitrosonium. Nitrosilium ion. That is nitrosilium ion. नाइट्रोसोनियम है। Nitrosonium. Nitrocell है, then IM. नाइट्रोसोनियम SOR नाइट्रोसोनियम। Nitrosonium ion. Small correction. Nitrosonium ion. ठीक. How it react on this? There is an N double bond O plus positive charge here, lone pair here, and this lone pair attack on this compound, and it forms compound like this. NH have already break one hydrogen from here, and this is attached like this. And this structure is for the tautomerism. अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे N double bond Y O taken as a electronegative element compared to nitrogens. यहाँ पे कार्बन भी हो सकते हैं पॉसिबली, यहाँ पे कार्बन के साथ भी हम करा सकते हैं, जैसे कार्बन में आपने इनोडायोल रिएक्शन पढ़ी थी लास्ट टाइम, पढ़ाया था ना आप लोगों को इन एंड डायोल। तो उसी टाइप का टाउटोमेरिज्म यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कैसे हो रहा है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में ये ऑक्सीजन आपका इस तरीके से ब्रेक। अब ये बाकी स्ट्रक्चर हम नहीं बनाना है, सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर लेना है। यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका OH, एक लोन पेयर यहाँ पे इंटैक्ट है और अगले पे भी सेम इसी तरीके से। मीडियम आपका स्टिल एसिडिक है, यहाँ पे अगेन द पॉसिबिलिटी ऑफ सेम, एंड दिस इज लाइक, एंड व्हाट इज फॉर्म्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड दैट इज बेंजीन डाइसोडियम chloride. So that is the mechanism for the formation of benzene diazonium chloride. ठीक, एक्सपेरिमेंटली भी हम इसे बनाकर देखेंगे, और जो टेम्परेचर की बात है वहाँ पे हम इसे आइस में पैक में रखेंगे। क्योंकि ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ पे हमने ओ लैब्स का यूज़ किया है, वर्चुअल लैब्स का यूज़ किया था आप, और सिमुलेटर का यूज़ किया था कि आप प्रॉपरली रिएक्शन होते भी देख सकें। ठीक है, सो ओके, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्यों, आपने जैसे देखा ना, हमने बात की बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, स्टेबल है, तो ऐसा कंपाउंड स्टेबल भी कैसे हो? यहाँ पर आप देखिए, मैंने अभी पिछले रिएक्शन में अभी पॉजिटिव चार्ज लगाया था, तो सेम आप लोग पढ़ चुके हो किसी इलेक्ट्रोफाइल की आपकी स्टेबिलिटी अगर रिंग से अटैच है तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के थ्रू ऑर्थो देन पैरा देन बैक टू ऑर्थो एंड देन बैक टू दिस कंपाउंड, और आपका स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन कर रहा है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक, तो इसमें कई सारी रिएक्शन है, जैसे ये पैरेंट कंपाउंड है बहुत सारी रिएक्शंस के लिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ दे रहा हूँ। एराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट प्रिपेयर बाय द डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। तो कहाँ पे ये इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट आ जा सकती है आपकी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप इसको देख लेना पॉइंट को। तो हम डायरेक्ट आते हैं ओलैब्स पे। यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने इसीलिए ली है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, दिस इज द बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एंड इट्स पैरा पोजीशन, दिस वन फॉर्म, which one acts as an electrophile here? What kind of reaction is this? अभी आपने पढ़ा भी था पिछले, electrophilic substitution reaction, and in this case a para product is the stable one. So simply from the para product it attack and form the diazo. So there are two coupling reactions, that one is orange dye and one is the aminobenzene yellow dye. So here we show you the, यहाँ पे मैंने इस लिंक भी डाल दिया ताकि कोई भी बच्चा डायरेक्ट क्लिक करेगा तो सीधे वो ओलैब्स के लिंक पे भी पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे सेपरेट कर रखा है ऑलरेडी इस कंपाउंड को दिखाने के लिए। ये ओलैब्स में हमारा सिमुलेटर्स खोल रखा है मैंने, यहाँ पे सिमुलेटर आप ओलैब खोलोगे 12th क्लास में होगा, एलिन टाइप का होगा, तो वो करना चाहिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज दे रखी है कि किस तरीके से इसे परफॉर्म करना है, और रिएजेंट्स आर देयर एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो लाइक दिस, show 20 ml of water in the beaker. So in this beaker already 20 ml of water is there. Next step like this, drag and drop the dropper containing 10 ml HCl into the basing cylinder. अब इस स्क्रीन की एक समस्या है कि इस स्क्रीन पे आप टच तो कर सकते हो पर ड्रैग नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे पहला पॉइंट है ड्रैग द ड्रॉपर
containing 10 ml HCl. अब यहाँ पे बेसन निकला ऑलरेडी ये 10 ml ही करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम ड्रैग करें तो ये हो नहीं रहा। तो इसका दूसरा जो मैंने किया है, यहाँ पे मेरे पास माउस है, आप देखिए यहाँ से मैंने 20 ml HCl को उठाया और यहाँ पे पुट किया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमें क्या बनाना है यहाँ पे, सोडियम नाइट्राइड। पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन बना लें, पहले यहाँ पे हम HCl और एनिलीन को सोल्यूशन बनाएंगे, उसे फ्रीज करेंगे और देन नेक्स्ट स्टेप में सोडियम नाइट्राइड को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसमें HCl डाला। इसकी एक खास बात और है, सिमुलेटर में मान लीजिए आपने नहीं पढ़ रहा हो, यहाँ पे जिस पे कि ये हैंड का निशान है, आसानी से आप समझ जाओगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पे कोई भी हैंड का निशान नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस साइड बढ़ेंगे या इस साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, अदरवाइज हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में HCl था एंड थर्ड स्टेप में ड्रैग एंड ड्रॉप द मेजरिंग सिलेंडर। दिस इज द सिलेंडर व्हिच इज फुल ऑफ 10 ml HCl। तो आप इसे आसानी से पिक कर सकते हो, इसके ऊपर लाना है तो इसे छोड़ देना, ऑलरेडी ये मिक्सअप हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम इसमें दूसरी बार जाते हैं एनिलीन में। ये 10 ml HCl लिया था, इसका हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ एनिलीन को यहाँ से पिक करेंगे। सेम प्रोसेस, पहले हम उसे सिलेंडर में डालेंगे, देन पिक करेंगे और फिर हम इसे इसमें ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा एसिडिफाइड एनिलीन का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो। फिर हम इसको मिक्स करेंगे विद द स्टेरर ग्लास रॉड। दिस मिक्स्ड अप, व्हेन इट इज स्टॉप्ड you take this one and put in the fishing mixture. Okay, now what is the next step? इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है जब तक ये 5 डिग्री के नीचे नहीं आ जाए, हमें इसे इसमें रखना है। वैसे भी इसमें रख के ही रहेंगे इसको। देन हमने यहाँ पे थर्मामीटर का यूज किया और पुट कर, फिर यहाँ पे आई का निशान है, यानी ये अगला आगे कैसे बढ़ेगा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी इंस्ट्रक्शन, ड्रैग द थर्मा, क्लिक द इंफॉर्मेशन बटन। अब जैसे इंफॉर्मेशन करोगे तो इसमें क्या क्या सोल्यूशन मिला है, HCl एंड एनिलीन एट द टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो, जब ये मेंटेन हो जाएगा देन नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट स्टेप है हम सोडियम नाइट्राइड को पुट अप। हम यहाँ से 4 ग्राम सोडियम नाइट्राइड को पिक करते हैं और एक बीकर लेकर इसमें पुट अप करते हैं। इस ग्लास रॉड के थ्रू इसको मिक्स कर देते हैं इसको। देन हम यहाँ पे इसको बीकर को वापस इस आइस बाथ में करते हैं। अब इस आइस बाथ में एक सोडियम नाइट्राइड का सॉल्यूशन हो गया और दूसरी साइड में एनिलीन एसिडिफाइड में, तो क्या बन रहा है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ से देख सकते हो। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट अप कर चुके हैं आइस बाथ में। यहाँ पे ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप द बीकर इन द आइस बाथ। तो व्हाट इज द थर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनिलीन सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन। आप इसे पिक करोगे, इसके ऊपर लाओगे, इजीली इसमें मिक्सअप हो जाएगा, मिक्स हो गया। अब हमें यहाँ जाना है, इसको मिलाना है, तो इसको आप पिक करोगे, इसके ऊपर लाओगे, ये सॉल्यूशन मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम अब इस बीकर को लेंगे और इस बीकर में हमें इस एनिलीन और HCl का सॉल्यूशन लेना। पहले हम एनिलीन को लेते हैं, ये 4 ml है और यहाँ पे हम HCl एनिलीन सॉल्यूशन लगभग बराबर ले रहे हैं, यानी अब हम कपलिंग रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसको हमने यहाँ से लिया, इसको सबसे पहले आपने इसमें पुट अप कर दिया, देन HCl, ये भी सेम अमाउंट है, इसको भी पुट अप कर दिया इसमें। देन यहाँ से हमने इस सॉल्यूशन को लिया जो हमने ऑलरेडी फ्रीज कर रखा था बिलो 5 डिग्री और इसको इसमें मिक्स कर। तो यहाँ पे ये आपका फ्रीज सॉल्यूशन इसमें आके मिक्सअप हो गया। इसको हम ग्लास रॉड के थ्रू मिक्सअप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर रखना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन, आप बस इसको सिंपल इस तरह फ्रीज कर। हम यही इसी स्टेप तक जाएंगे। आगे के स्टेप में इन्होंने इसे इस डाई को फिल्टर किया है, फिल्टर करके ड्राई कर लिया, उसको स्टोर कर लिया। तो हमारी एनिलीन डाई यहाँ पे बन चुकी है। लाइक दिस सॉल्यूशन गेट अ येलो कलर, दिस इज द बेंजीन डायज़ोनियम, ये येलो डाई है, दैट इज द एनिलीन डाई। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन, इसको फिल्टर करके ड्राई करके अपने पे पैक कर सकते हैं, जो आगे के स्टेप्स, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है या आप लोग में से कुछ करना चाहे तो इसे एक स्लाइड पीछे कर देते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लेक्चर के बाद आप लोग इसे कोई करना चाहेगा तो इसे देख सकते हैं। हम यहाँ से इसे रीसेट करेंगे तो फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी कोई बच्चा करना चाहे तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो बाकी एक माइंड मैप भी बना रखा है हमने, यानी इसकी रिएक्शन जैसे कपलिंग रिएक्शन ही तो नहीं, बहुत सारी रिएक्शन है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की कई सारी रिएक्शन है। आप यहाँ से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, साइनोबेंजीन, ये 3 रिएक्शन आपको पता है। तीनों रिएक्शन के नाम है
सैंडमेयर रिएक्शन जो आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी, एक तरीके से रिवीजन है। एमीन्स में कई सारी रिएक्शन का रिवीजन आपने फर्स्ट चैप्टर में सैंडमेयर रिएक्शन पर जरूर पढ़ी होगी हैलाइड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन है, जहाँ पे हमने सॉल्ट लिया है Q+ क्लोराइड के साथ HCl, सॉल्ट के साथ HCl। दूसरी भी नेम रिएक्शन में गैटरमैन रिएक्शन है, यहाँ शायद लिखी नहीं है। गैटरमैन रिएक्शन में हम सॉल्ट की बजाय सिंपली कॉपर का यूज कर रहे हैं, मेटल का यूज कर रहे हैं, उसके साथ HCl। कुछ और भी रिएक्शन है जो डायरेक्ट नहीं बन पा रही है, जहाँ पे ये सैंडमेयर का यूज नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इससे डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है, यानी हम जितनी भी एरोमेटिक हैलाइड्स हैं इसके साथ बना सकते हैं। और भी चीजें, ये रिएक्शन कई बार बोर्ड में आई है, फ्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन को बोर्ड में कई बार पूछा भी गया, जो थोड़ी सी डिफरेंट है, जहाँ पे एक अनदर टाइप का आप समझो डाइजेनिक सॉल्ट बना रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन को यहाँ से इस नाइट्रोजन की जगह BF4- लग जाए। तो ये माइंड मैप आप पढ़ करके आसानी से सीख सकते हो। इसका एलोबरेशन आप देखेंगे कि आगे सभी में आप इसके एलोबरेटेड फॉर्म में है, आप इसके आसानी से समझ सकते। ठीक है, ये होमवर्क दे रखा है, आप लोग इसे घर बैठ के करिएगा। सिंपल प्रिपरेशन है कपलिंग रिएक्शंस की और कुछ नोट्स हैं कॉन्सेप्ट। थैंक यू। एक थैंक्स वाला सर। थैंक्स।